हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 to 6 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 1, ਇੱਕ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 2, ਇੱਕ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 3। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ n1 ग्रुप n1 जो है एक ग्रुप 1 दियां नंबर ऑफ आइटम्स है, ग्रुप 2 दियां नंबर ऑफ आइटम्स n2, ग्रुप 3 दियां नंबर ऑफ आइटम्स n3 एंड सो ऑन। जेड़ा ग्रुप तुहाडा n है ओदियां नंबर ऑफ आइटम्स n हो गईयां, ठीक है जी। हर एक ग्रुप का मान लो मीन गिवन है तुहानू। ग्रुप 1 का मीन 1 हो गया, ग्रुप 2 का मीन 2 है, ग्रुप 3 का मीन 3 है एंड सो ऑन। जिहड़ा nth ग्रुप है ਉਹਦਾ मीन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ भी गिवन है। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ मीन है ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਬਾਈਨਡ मीन ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ मीन ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ मीन ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ मीन ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ मीन ਕੰਬਾਈਨਡ मीन। C stands for students combined mean। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ COMB ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ मीन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ मीन ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ मीन ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ मीन ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਸ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ मीन ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ मीन ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ n ਗਰੁੱਪ ਹੈ n ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ मीन ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करना है। और वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स किवें आउणियां, सारियां ग्रुप्स दियां नंबर ऑफ आइटम्स नूं प्लस करके, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ग्रुप 1 प्लस नंबर ऑफ आइटम्स ग्रुप 2 प्लस नंबर ऑफ आइटम्स ग्रुप 3 एंड सो ऑन। आपां n ग्रुप्स दियां जिहड़ियां नंबर ऑफ आइटम्स है सारियां नूं ऐड कर देना है ते डिवीजन कर देनी है स्टूडेंट्स। तुहाडे कोले कंबाइंड मीन जिहड़ा है वो आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जी स्टूडेंट्स नोटिस करनी है वो ये आ कि हर एक ग्रुप की जिहड़ियां नंबर ऑफ आइटम्स ने उन्होंने दे रिस्पैक्टिव मीन नाल मल्टीप्लाई करी जाना है, ठीक है। तो ये की होगा स्टूडेंट्स, इस दे नाल n1 इंटू मीन 1 दे नाल सम ऑफ आइटम्स आ जाऊगा ग्रुप 1 दियां सम ऑफ आइटम्स, ठीक है। जिमें कि n1 इंटू मीन 1 दे नाल की आ जाऊगा साडे कोले सिग्मा x1 यानी कि ग्रुप 1 दियां सम ऑफ आइटम्स। अं सिमिलरली n2 ते मीन 2 तुहानू की दे देगा सम ऑफ आइटम्स ऑफ ग्रुप 2 एंड सो ऑन। n3 इंटू मीन 3 नाल तुहाडे कोल सम ऑफ आइटम्स ऑफ ग्रुप 3 आ जाणियां एंड सो ऑन अप टू n तक, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट्स असीं हर एक इंडिविजुअल ग्रुप दियां आइटम्स दे सम नू ऐड कर दांगे तो सारे ग्रुप्स दियां आइटम्स का सम तुहाडे कोल आ जाएगा और उसनू नंबर ऑफ आइटम्स जिहड़ियां कि ऑल ग्रुप्स दियां नंबर ऑफ आइटम्स है उते डिवाइड कर दो, यू विल गेट कंबाइंड मीन। इसकी प्रैक्टिस करवाउण लई स्टूडेंट्स मैं हुण तुहानू न्यूमेरिकल करवाऊंगा तां वो तुसीं न्यूमेरिकल देख सकते हो, उन्हां तों तुहानू काफ़ी आसानी होगी, ठीक है जी। तो तुहाडे सामने स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल असीं डिस्कस करांगे। इस न्यूमेरिकल नूं तुहाडे सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो ये न्यूमेरिकल की है। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल च कहा गया कि द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री
is 61 centimeter and the mean height of 35 female workers in the same factory is 58 centimeter. Find the combined mean height of 60 workers in a factory. यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करना है, आप कंबाइंड मीन जिहड़ा है फाइंड आउट करना हैगा। तो आप पहला इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर दिए। तो इत्थे स्टूडेंट साडे कोल दो ग्रुप ने वर्कर्स दे, एक मेल वर्कर्स का ग्रुप आ, एक फीमेल वर्कर्स का ग्रुप आ। तो वो आप जी इन्फॉर्मेशन आ उन्होंने लिख लीए। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप जिहड़ा मेल ग्रुप है वो इन्फॉर्मेशन लिख लीए। तो जी मेल ग्रुप आ स्टूडेंट्स, जिहड़े मेल ग्रुप दे नंबर ने, ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स वो किन्ने ने, NM स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, ठीक है, वो है 25। उस तो बाद जिहड़ा मीन है स्टूडेंट्स, मीन ऑफ मेल वर्कर इज 61 सेंटीमीटर। उस तो बाद स्टूडेंट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन फीमेल दी भी तुसी नोट डाउन कर लो। जिहड़ियां नंबर ऑफ फीमेल्स ने, फीमेल वर्कर्स ने स्टूडेंट्स वो है 35, ठीक है, और उन्हां फीमेल वर्कर्स का जिहड़ा मीन है दैट इज है 58 सेंटीमीटर, यानी कि उन्होंने जी हाइट की एवरेज है वो 58 सेंटीमीटर है। सानू क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि सानू जिहड़े टोटल वर्कर्स ने उन्हों का मीन कढ़ दो, यानी कि जो सानू गिवन है वो मेल ते फीमेल का अलग अलग है, असीं उन्हां दा कंबाइंड मीन निकालना है इकट्ठा करके। तो वो किवें निकलूगा, देखो स्टूडेंट्स आप इत्थे फार्मूला लगाया, ठीक है, COMB का मतलब कंबाइंड मीन का। तो तुसीं क्या करोगे, जो मेल वर्कर्स ने, ठीक है, मेल वर्कर्स ने उन्होंने दे मीन नाल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, क्लीयर ना, ओके, यानी कि 25 × 61 हो जाएगा। फिर प्लस कर दो जिहड़ियां नंबर ऑफ फीमेल ने उन्होंने दे मीन दे नाल, यानी कि इन दिस वे। फिर नीचे स्टूडेंट्स डिवाइड कर दो टोटल ते, टोटल वर्कर्स ते, जो कि किवें आएगा, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, इन दिस वे तुहाडे कोल टोटल वर्कर्स आ गए। तो हुण जिहड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस तरह सॉल्व होएगा, NM यानी कि नंबर ऑफ मेल वर्कर्स अपने कोल किन्ने ने 25 आ, उन्होंने उन्हां दे मीन नाल मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 61, फिर साइन प्लस दा इनू ब्रैकेट च रख लो सो दैट कोई गलती ना होवे। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स आ गया अपने कोले फीमेल वर्कर्स किन्नियां ने 35 ते जिहड़ा मीन है अपना फीमेल वर्कर्स दा वो हैगा 58, सो 35 × 58, ठीक है जी। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स नीचे की आऊगा फार्मूले दे, नीचे आऊगा स्टूडेंट्स फार्मूले दे जिहड़े मेल वर्कर्स आ प्लस तुहाडे फीमेल वर्कर्स दैट इज 35, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स असीं इहनूं कैलकुलेट कर लांगे और साडे कोल जिहड़ा है वो कंबाइंड मीन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा ये सम है वो आपां मतलब कि देख लिए कितना आ रहा है, देखो 25 × 61 करके अपने को जी वैल्यू है वो आ रही है स्टूडेंट्स 1525 प्लस 35 × 58 करके आ गया स्टूडेंट्स अपने को 2030, नीचे स्टूडेंट्स अपने को हैगा 60, ठीक है। डिवाइड करोगे स्टूडेंट जो ये सारिया वैल्यूज नू, ठीक है, अपने को 59.65 आ गया। दिस इज दी कंबाइंड मीन ऑफ 60 वर्कर्स, यानी कि एंटायर वर्कर्स का यह मीन आ गया। ये आप कंबाइंड मीन का फार्मूला लगा के निकाल लिया, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स आप नैक्सट फार्मूला ते पहुंचते हैं, नैक्सट क्वेश्चन ते पहुंचते हैं, सॉरी। तो लो स्टूडेंट्स आप सैकेंड क्वेश्चन तुहाडे नाल सॉल्व करांगे हुण। तो देखो जी इस क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, द एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे was 10 centimeter. Due to heavy rainfall on Sunday, the average for the week rose to 15 centimeter. How much rainfall was on Sunday? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसनूं विद दी हेल्प ऑफ कंबाइंड मीन फार्मूला डिस्कस करूँगा। सब तो पहला तो स्टूडेंट्स तुसी पूरा वीक ले लो, एक तो पूरा वीक ले लो, वीक च 7 डेज है, फिर उस वीक के 2 पार्ट बना लो, एक विदाउट संडे एक संडे, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਰੇਨਫਾਲ ਫॉर ਅ ਵੀਕ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਸੰਡੇ ਵਾਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ 7 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ 6 ਡੇਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਸੰਡੇ 6 ਡੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿਆ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਵਰੇਜ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਫॉर ਦਾ ਵੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 7 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ 7 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ 15। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ 15, ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 15। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ n1 into mean 1 plus n2 into mean 2 over n1 plus n2। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਦੀ that given is 15। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਨ 1 ਹੈ, ਸੌਰੀ n1 ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 10। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ n2 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1, ਮੀਨ 2 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਨੀਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ that is n1 plus n2, यानी कि 6 plus 1। ठीक है जी, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 15 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਮੀਨ 2, ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ 105 ਆ ਜਾਊਗਾ। 105 is equal to 60 plus mean 2। ਤਾਂ ਮੇਨ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ 45। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਨਫਾਲ ਆ ਔਨ ਸੰਡੇ ਉਹ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਾਊ ਮਚ ਰੇਨਫਾਲ ਔਨ ਸੰਡੇ, ਤਾਂ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਰੇਨਫਾਲ ਔਨ ਸੰਡੇ, ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 1 ਡੇ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਡੇ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੀਨ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ paid to all employees in a certain company was rupees 600. The mean monthly salary paid to male and female employees were 620 and 520 respectively. Find the percentage of male to female employees in the company. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਇੰਟਾਇਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ EMPLOYEES ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ that is 600 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਮੀਨ ਹੈ that is given 620, ਉਹ 620 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਮੀਨ that is ਹੈਗਾ 520। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,
परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। लेट सपोज कि जी NM है, NM क्या है, मान लो ये परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स। आप सपोज कर लिया कि ये परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स है, और जी NF आ दैट इज होगी स्टूडेंट्स मान लो परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है जी, तो स्टूडेंट जी N होगी दैट इज होगी टोटल वर्कर्स, तो वो टोटल वर्कर्स इन परसेंटेज किन्ने होणगे 100%। ठीक है जी, तो इतने बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट जी N की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, जो N 100 आ गया तो हुण आपां इसनूं कैलकुलेट करांगे किवें यूज़ करते हैं। देखो, तो सब तो पहला तो स्टूडेंट्स आपां इत्थे फार्मूला लगाइए कि कंबाइंड मीन दा फार्मूला, कंबाइंड मीन दा फार्मूला है जो मेल वर्कर्स ने है ना NM, ठीक, इनटू उन्हां दा मीन। ठीक है जी, प्लस ਜਿਹੜੀਆਂ फीमेल वर्कर्स ने पहला उन्हां दा मीन ले लो, फिर उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो फीमेल वर्कर्स के मीन नाल। नीचे आ जाऊगा स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ मेल प्लस परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स, जिन्हों आपां और N भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, टोटल N भी लिखा जा सकता है। हुण स्टूडेंट जो कंबाइंड मीन है दैट इज हैगा अपने को 600। ठीक है जी, जो NM है यानी कि जो परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स है दैट इज नॉट गिवन, बट मीन गिवन है उन्हों का, मीन इज 620। ठीक है जी, क्लीयर। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपां नूं फीमेल वर्कर्स का मीन गिवन है बट उन्होंने जी परसेंटेज है दैट इज नॉट गिवन है ना, तो उन्होंने आप लिख लीए 520 ए मीन हो गया, तो इनटू NF। नीचे स्टूडेंट्स अपने को क्या है NM ते NF। तो इतने स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन दो तरीके ने सॉल्व करन दे, वो दोनों तरीके जिहड़े मैं तुहानूं दस दूंगा। पहला रेशो वाला तरीका हैगा, पहला मैं तुहानूं रेशो वाला तरीका करवा दा। रेशो वाले तरीके स्टूडेंट तुसीं इहनूं इस तरह लगा लो NM प्लस NF ही लिखो। ठीक है जी, क्लीयर। तो जिहड़ी ये NM प्लस NF है, ठीक है, इनू मल्टीप्लाई कर दो 600 नाल, तो 600 NM आ गया प्लस 600 NF आ गया इज इक्वल टू 620 NM प्लस 520 NF। हुण स्टूडेंट तुसी क्या करो, जिहड़ी चीज़ जिस चों माइनस हुंदी है वो माइनस कर दो, यानी कि तुसी 600 NF दे विचों जिहड़े आ चीज़ इधर ले आओ। ठीक है, 520 NF तो माइनस कर दो 520 NF इज इक्वल टू कर दो स्टूडेंट्स फिर आ 620 NM दे विचों आली चीज़ उधर चली जाएगी। ठीक है, माइनस कर दो 600 NM। जो स्टूडेंट्स तुसीं इस तरह कर रहे हो तो थोड़े को इत्थे बन गया 80, तो 80 NF इज इक्वल टू 20 NM। ठीक है जी, आ चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। ये चीज़ मैं हुण ऊपर जाके समझाना है, थोड़ा आप इत्थे ले चलीए, इत्थे ले आओ। ये स्टूडेंट्स हैगा जिहड़ा 80 NF इज इक्वल टू 20 NM, तो इस तरह बन जूगा। देखो 80 तुसीं ऐ रख लो। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय की हो गया स्टूडेंट्स 20, आ 20 मैं इधर डिवाइड करता, तो NM ओवर NF। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आप कटांगे तो 4/1 बन गया। इट मीनस NM ओवर NF मीनस जेडी रेशो आ ना, रेशो दैट इज 4:1 दी है। मतलब आ हो गए मेल वर्कर्स, आ हो गया फीमेल वर्कर्स। ठीक है, तो मेल ते फीमेल वर्कर्स जी रेशो आ दैट इज हैगी स्टूडेंट्स 4:1 दी, तो 4:1 ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ कैलकुलेट कर ਲਾਂਗੇ। तो इट मीनस ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ सुनो स्टूडेंट्स मैं यहाँ ਆਪਾਂ हल्का जा ਇਹਨੂੰ रेस कर लीए। ठीक है, तो अपने को जी रेशो आई सी स्टूडेंट्स ਉਹ 4:1 है। ठीक है, उन्होंने ਵਿੱਚੋਂ आ नंबर ऑफ मेल ने, आ नंबर ऑफ फीमेल दी आ रेशो आ गई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ शेयर ਕੱਢੀਏ ना परसेंट ऑफ मेल वर्कर्स है ना, तो मेल वर्कर स्टूडेंट्स किमें आउणगे तो मैं दसदा। इट मीनस मेल वर्कर्स 4:1 है ना, तो इट मीनस 4 ओवर सम ऑफ रेशो। ठीक है, इनटू 100 कर दो, सो दैट सूँ पता चल जे
इट मीनस 80%। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि 80% जोड़े ने वो मेल वर्करस ने, तो 20% जड़ियाँ रह गई रिमेनिंग 20% इज जड़ियाँ ने फीमेल वर्करस ने। ठीक है जी, क्लीयर ना। तो इन दिस वे तुसी एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर सकते हो। जो दूसरा तरीका वो भी मैं तुहानू सब नू करवा देना भी, वो तरीका की है देखो, वो तरीका भी देखो स्टूडेंट्स। उस तरीके फिर तुसी वो इन्फॉर्मेशन लिख लो सारी, ठीक है, जी आप नोट डाउन कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लिए। लो जी, तो इन्फॉर्मेशन की है वही वापस चीज़ां लिखांगे कि जोड़ा साडा कंबाइंड मीन सीगा, ठीक है, दैट इज़ 600 सी। ठीक, जो मेल दा मीन सीगा दैट इज़ 620, और जो फीमेल दा मीन सी दैट इज़ सीगा 520, और जो NM है दैट इज़ नॉट गिवन, परसेंटेज ऑफ फीमेल भी नॉट गिवन, बट जी टोटल है, टोटल वर्कर्स कितने बन जाएंगे 100%। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स फार्मूला लग जाएगा, फार्मूले च कंबाइंड मीन 600 हो गया। ठीक है, मेल मीन कितना हैगा 620, उन्होंने दे नंबरस ना मल्टीप्लाई कर दो प्लस 520, ठीक, इंटू उन्होंने दे नंबर नाल यानी कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ना मल्टीप्लाई कर दो, नीचे टोटल। तो टोटल स्टूडेंट्स NM प्लस NF और N। इस बार स्टूडेंट्स असी NM ते NF नू नहीं लिखांगे, N मीनस 100 लिख देंगे। तो 600 620 NM प्लस 520 NF। NF तुहानू पता ही स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स है, जोड़ा 100 सी स्टूडेंट्स, क्योंकि N अपने को 100 गिवन है ना, तो उत्थे 100 लिख दो, क्योंकि टोटल एंटायर वर्कर की परसेंटेज तो 100 ही बनेगी ना। 100 को इस नाल मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। ठीक, उस तो बाद तुहाडे कोल ये चीज़ां ने, तो इहदे लई की करना है स्टूडेंट्स, एक काम करना है, तुसीं सारे जानते हो कि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स प्लस परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज इक्वल टू कितना है 100 है। मैं पिछे भी दसिया सीगा, ठीक है, 100 है। ओके, तो हुण तुसीं क्या करो, किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, जिवें मान लो सपोज तुसीं नंबर ऑफ जेडे मेल वर्कर्स ने किवें आएणगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स, यानी कि NM की जगह तुसीं आली वैल्यू पुट कर दो 100 माइनस NF। तो NM की जगह तो आप की करांगे स्टूडेंट्स 100 माइनस NF पा देंगे। ठीक है, और इत्थे प्लस 520 NF। तो हुण देखो स्टूडेंट्स किवें होगा सॉल्व, आ चीज़ 6 माइनस 620 NF मल्टीप्लाई करता प्लस 520 NF। तो हुण आड़ा 62,000 आ, इधर 60,000 माइनस कर दो, तो ये स्टूडेंट्स तुहाडे कोल 2,000 आ गया। ठीक है, नाले माइनस का आएगा क्योंकि 60,000 चो माइनस करांगे ना आप, तो माइनस का 620 तो प्लस का 520 है, ये बच जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का अपने को 100 NF। जो डिवाइड करांगे स्टूडेंट्स माइनस ना माइनस कैंसिल हो जाएगा, और NF यानी कि परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स अपने को आ गई 20, क्योंकि 2000 डिवाइड बाय 100 करांगे तो 20% आ गई। इट मीनस ऑब्वियस है टोटल अपने को स्टूडेंट्स जो मेल वर्कर्स आ वो किमें आ जाऊगा 100 चो की माइनस करके 20% ऑफ द जो फीमेल वर्कर्स है, यानी कि 80% अपने को मेल वर्कर्स आ जाएंगे। इन दिस वे तुसीं ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो, ईजी सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो तरीके ने, एक रेशो मैथड सी वो भी तुसीं कर लिया, तो के वाला मैथड है। कई बार स्टूडेंट्स तुहानूं इन्फॉर्मेशन इस तरह ही दे देंगे पेपर दे विच, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जिमें कि तुहानूं कहता कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन पता करो, इसका मतलब तो तुसीं क्या करना है, जिहड़ा ग्रुप 2 है ना उसकी इन्फॉर्मेशन पता करनी है। ठीक, तो इसमें आप इस तरह लिख लांगे स्टूडेंट्स, जिहड़ा कम देखो ग्रुप 1 दी आइटम्स 50 ने तुहाडे कोले, ठीक है जी, क्लीयर ना, 50 ने। उस तो बाद ग्रुप 2 इज मिसिंग, ठीक, ग्रुप 3 दी आइटम्स 90, कंबाइंड मीन जिहड़ा कंबाइंड नंबर ऑफ आइटम्स कितनियां ने 200। ठीक है जी, तो मीन अपने को ग्रुप 1 का 130 ने, ग्रुप 2 इज मिसिंग, ग्रुप 3 का मीन जिहड़ा 150 ना, तो कंबाइंड मीन इज 116। तो हुण स्टूडेंट्स आप ये चीज़ जी मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ वाली है ना, ये फाइंड आउट कर लांगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप इन्फॉर्मेशन लिखिए, तो फिर उस तो बाद इनू सॉल्व करिए। लो जी, तो
सब तो पहला स्टूडेंट्स आप लिख लिए कंबाइंड मीन का फार्मूला जो तुहानूं सिखाया है, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू ग्रुप 1 दियां नंबर ऑफ आइटम्स इंटू ग्रुप 1 का मीन प्लस ग्रुप 2 दियां नंबर ऑफ आइटम्स ते उसका मीन प्लस ग्रुप 3 दियां नंबर ऑफ आइटम्स ते उसका मीन। ठीक है, नीचे टोटल आइटम्स यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3। तो जिहड़ी भी इनफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तुहाडे कोल अवेलेबल आ वो तुसी फाइंड आउट कर लो। तो इत्थे एक चीज़ मैं दसना चाहूँगा कि ग्रुप 2 दियां आइटम्स तुहाडे कोल स्टूडेंट्स सदियां आ जाणियां, क्योंकि क्या है लैट ग्रुप 2 दियां आइटम्स x ने, तो 50 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 200 है। ठीक है, तो तुसी क्या करो 50 ते 90 किन्ने हो गए, फर्स्ट ते थर्ड ग्रुप दियां आइटम्स 140 आ, टोटल किन्नियां ने 200, तो 200 चों आपां 140 माइनस करके जिहड़ा तुहाडा ग्रुप 2 आ उहदियां आइटम्स किन्नियां आ जाणगियां 60 आ जाणगियां। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट सॉल्व करना बस सिंपली, तो कंबाइंड मीन इस किन्ना हैगा 116। ठीक है, N1 इज 50 इंटू मीन 1 113 हो गया स्टूडेंट्स। उस तो बाद N2 अपने कोले हैगी है 60, मीन 2 इज नॉट गिवन। ठीक है, उस तो बाद स्टूडेंट्स N3 इज थोड़े कोले हैगा 90 इंटू मीन 3 इज 115। ठीक है जी, क्लीयर। और टोटल N स्टूडेंट्स अपने कोले N1 प्लस N2 प्लस N3 गिवन है, दैट इज 200। तो इत्थे तुसी 200 लिख लो, चाहे इंडिविजुअल सम कर लो भी 50 प्लस 60 प्लस जिहड़ा 90। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट 200 नूं 116 नाल मल्टीप्लाई करके नूं सॉल्व करके तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो आप इनू सॉल्व करते हैं तो साढ़े कोल जिहड़ा आंसर है सारी मल्टीप्लाइकेशन करके आप x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप x2 वास्ते सॉल्व कर लांगे। ठीक है जी, क्लीयर। और x2 का जिहड़ा आंसर है स्टूडेंट्स वो साढ़े कोले 120 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, ये सॉल्व स्टूडेंट्स बड़ी आसानी नाल हो सकता है, इस करके तुसीं इनू सॉल्व कर सकते हो, तो इनू सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो गई। ओके, नैक्सट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े लिए बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है, तो वो आप डिस्कस करते हैं। कहना भी इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 हैव फेल्ड एंड देयर एवरेज मार्क्स is 2.5. The total marks secured by the entire class were 281. इत्थे स्टूडेंट्स फोकस करना है, की लिखा हुआ है टोटल मार्क्स। ठीक है, आगे की लिखा है सिक्योर्ड बाय द एंटायर क्लास, कितने दे रखे ने 281। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ दोज हु हैव पास्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नूं आपां जिहड़ा क्वेश्चन है ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ एंटायर क्लास ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ n ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, एंटायर क्लास और एंटायर क्लास ਦੇ स्टूडेंट्स ਕਿੰਨੇ ਨੇ, टोटल स्टूडेंट्स ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਹੋਗੀ 50। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ स्टूडेंट्स फेल ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ फेल्ड स्टूडेंट्स ने 10 हैव फेल्ड। इट मीन स्टूडेंट्स फिर पास किन्ने होए, टोटल क्लास 50 स्टूडेंट्स दी है, 10 ਉਹ ਚੋਂ फेल्ड ने ਤਾਂ पास हो गए 40। ठीक है जी, ਤਾਂ ਹੁਣ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਫੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਫੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2.5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਨਿਕਾਲਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਇਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਆ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਸਿਕਿਉਰਡ ਬਾय द ਇੰਟਾਇਰ ਕਲਾਸ 281। इट मीनस इंटायर क्लास दे उन्होंने अपन की दे रखिया सिग्मा x की वैल्यू दे रखी है दैट इज 281। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जे अपन इत्थे कंबाइंड यानी कि इंटायर क्लास की एवरेज चाहिए तो किवें आ जाऊगी 281 डिवाइडेड बाय 50 करके। ठीक है जी, क्लीयर। तो इस तरह आ सकती है। ठीक है, तो इट मीनस सानू आ सब इन्फॉर्मेशन गिवन है। हुण तुसीं क्या करो, फार्मूला लिख दो कंबाइंड मीन दा। सो दिस इज योर कंबाइंड मीन स्टूडेंट जिहड़ा एंटायर क्लास दा हैगा। ठीक है, फार्मूला की बनूगा नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इनटू उन्हां दा, ठीक है, मीन।
प्लस नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स इनटू उन्हां दा मीन पास स्टूडेंट्स का ओवर की आ जाऊगा स्टूडेंट्स टोटल क्लास जिस फेल ते पास दोनों बच्चों नूं ऐड करके थोड़े कोल टोटल एन आ जाऊगी। ठीक है, हुण कंबाइंड मीन स्टूडेंट्स कितना हैगा ये सारा मैं तुहानूं दसदा। एक बार फिर फार्मूले नूं तुसीं इन दिस वे लिख लो, मीन कंबाइंड इज इक्वल टू, ठीक है जी, आप इत्थे वैल्यूज पुट कर दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इत्थे लिखो 10, आप दोबारा कर लेने, इत्थे लिखने स्टूडेंट्स। ठीक है, कंबाइंड मीन कितना अपने को 281 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज द कंबाइंड मीन। फेल स्टूडेंट्स किन्ने सी 10 इंटू 2.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस तो बाद पास स्टूडेंट्स किन्ने सी 40 इंटू उन्हां दा मीन। ठीक है, उस तो बाद नीचे स्टूडेंट्स ओवरऑल बच्चे किन्ने सी एन किन्नी सी 50। हुण आ 15 तुसी इधरली साइड की कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो ही मल्टीप्लाई करोगे नीचे स्टूडेंट्स 15 और 50 कैंसल हो जाऊगा और तुहाडे कोल की बचूगा 281 इज इक्वल टू, फिर 10 नूं इन्हां मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 25 प्लस 40 इंटू पास स्टूडेंट्स का मीन। ठीक है, हुण 25 इधर माइनस किया स्टूडेंट्स कितना आ जाऊगा 256। ठीक है, इज इक्वल टू 40, ठीक है, 40 इंटू मीन ऑफ पास स्टूडेंट्स। तो हम 256 ओवर 40 करके स्टूडेंट्स थोड़े को पास स्टूडेंट्स का की आ जाऊगा मीन, दैट विल कम्स टू, तो इत्थे दस दिए आपां जिहड़ा पास स्टूडेंट्स का मीन है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स थोड़े कोले 256 डिवाइडेड बाय 40 मीन 6.4। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल जा, मतलब मैं क्वेश्चन इस तरीके ना करवाया है कि तुहानू फार्मूले के अकॉर्डिंग करना सिखा दिता जाए, डायरैक्ट भी हो सकता सी बट आप विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला सीखिया है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप हम डिस्कस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50। The marks obtained by the 40th student are 39 more than the average marks of all the 40 students in the class। तो स्टूडेंट्स सब तो पहला आप इस क्वेश्चन की जी इनफॉर्मेशन है उन्होंने लिखिए। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आपको दे रखे है कि टोटल स्टूडेंट्स अपने को किन्ने ने इस क्वेश्चन च ये चीज़ क्लीयर करिए। तो जो टोटल स्टूडेंट्स ने ना स्टूडेंट्स वो साढ़े को 40 है। इट मीनस जी तुहाडे कोल n है ना दैट इज 40। हुण उस 40 दे दो पार्ट्स ने, एक चों पहला ग्रुप है 39 स्टूडेंट्स का और जो सैकेंड ग्रुप बनूगा स्टूडेंट्स वो सिंगल स्टूडेंट का बनूगा जोड़ा कि 40th स्टूडेंट है। ठीक है, जोड़ा कि 40th स्टूडेंट आ। ठीक, डन भी। ये तो स्टूडेंट साडे कोल मतलब कि इनफॉर्मेशन होगी। हुण जो 40 स्टूडेंट्स की एवरेज है दैट इज नॉट गिवन, तो असी सपोज करांगे कि वो 40 स्टूडेंट्स की जी एवरेज है दैट इज ए है। मान लो जी कंबाइंड एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स है दैट इज ए, सपोज कर ली मैं ए आ। वो जी 39 स्टूडेंट्स की एवरेज आ दैट इज स्टूडेंट्स हैगी अपने को 50, वो आप लिख लेने हैं। और जो 40th स्टूडेंट आ जोड़ा कि सिंगल स्टूडेंट आ उसके अपन एवरेज नहीं पता। तो हम जो स्टूडेंट्स इस 40th स्टूडेंट आ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਆਈਟਮਸ ਇਨਟੂ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਮੀਨ ਪਲਸ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਆਈਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਟੂ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਮੀਨ ओवर n1 प्लस n2। हुण स्टूडेंट्स आप मीन टू फाइंड आउट करना, बट इत्थे स्टूडेंट्स एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी मैं इसनूं क्लैरीफाई करा। उन्होंने आपको 40th स्टूडेंट जिहड़ा कि गिनती च एक है वो जिहड़े स्कोर आ वो दे रखे है। इट मीनस सिंपल लैंग्वेज उन्होंने आपको मीन टू दे रखे है। किवें दे रखे है?
ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 39 ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਆਫ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ 40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ A, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ 39 ਹੈ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ। 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਗੀ A ਤੋਂ 39 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੀਨ 2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 40th ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ ਵੀ 39 ਪਲੱਸ A ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਵੀ 39 ਪਲੱਸ A ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਇਸ A ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, N1 ਇਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀ 39 ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 50। 39 into 50 ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ N2 is 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, into mean 2 स्टूडेंट्स दैट इज हो गया 39 प्लस A। ठीक है, नीचे स्टूडेंट्स होगी N1 प्लस N2 मतलब कि इंटायर क्लास जी कि 39 प्लस 1 यानी कि 40 स्टूडेंट्स बन जाएंगे। हुण 40 नूं इन्हां मल्टीप्लाई करके कितना बन गया स्टूडेंट्स 40A। 39 नूं 50 नाल मल्टीप्लाई करके बन गया 1950। इस साइड बन जाऊगा स्टूडेंट्स प्लस 39 प्लस A। ठीक है, क्लीयर। तो हुण आपां की करिए 40A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਸਿੰਗਲ A ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਧਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋਗੀ 1950 39 ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 1989 ਆ ਗਏ। 40A ਚੋਂ 30 ਤੇ 39A ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ A ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ दैट इज आ गई 51। ठीक है जी, क्लीयर ना। तो स्टूडेंट्स अपने को जो ये आंसर आ गया दैट इज ठीक है 51। तो 51 जी अपन पूछे गए सी स्टूडेंट्स आपां एवरेज मार्क्स पूछे सीगे उन्होंने। ठीक है, इस क्वेश्चन दे विच जिहड़ी चीज़ पूछी गई सी तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये सी कि 40 स्टूडेंट्स से जेडे मतलब क्वेश्चन इत्थे इनकम्पलीट रह गया। तो बेसिकली उन्हें ऐ पूछा सी फाइंड दी एवरेज ऑफ ठीक है एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स यानी कि जी टोटल क्लास आ उन्होंने बच्चों की एवरेज यानी कि आप ए फाइंड आउट करनी सी। तो स्टूडेंट्स अपने को ए आ गई यानी कि इंटायर क्लास के बच्चों की जी एवरेज बनती है दैट इज बनती हैगी है 51। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानूं एक चीज़ दसना चाहूँगा कि लास्ट वन कि लाइक सम टाइम ना मैं तुहानूं एक शॉर्टकट दसदा कि अगर सपोज तुहाडे कोल 3 ग्रुप ने, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। मान लो ये सारे ग्रुप्स का जिहड़ा मीन है ना, मान लो ग्रुप 1 का मीन जिहड़ा हैगा दैट इज 10, ग्रुप 2 का हैगा 20, ग्रुप 3 का हैगा 30। ठीक, आ हैगे ने नंबरस यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी, तो मान लो सपोज स्टूडेंट सारे ग्रुप च नंबर ऑफ आइटम सेम ने 100 100 100। तो इस तरह के केस में स्टूडेंट तुहानूं कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तुसीं क्या करो, जेकर सारे ग्रुप्स दियां नंबर ऑफ आइटम सेम ने ना, तुसीं क्या करो, तुसीं जिहड़े तीनों ग्रुप्स के मीन ने ना उन्होंने सिंपली ऐड करो, जिवें 10 प्लस 20 प्लस 30 तो उन्होंने एवरेज ले लो बस उन्होंने। ठीक है, तीनों मीन ऐड करो, जिन्ने तुसीं मीन ऐड करोगे उन्ने ते डिवाइड कर दो यानी कि उन्होंने एवरेज ले लो। तो जिवें आंसर 20 आ गया। सो दिस विल बी द कंबाइंड एवरेज यानी कि तीनों ग्रुप्स की जी ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 की जी कंबाइंड एवरेज है दैट विल बी 20। बट स्टूडेंट्स ये फार्मूला तुसीं उत्थे ही लगाओ जिथे तीनों ग्रुप्स यानी कि जिन्ने भी तुहानूं ग्रुप गिवन होणगे उन्हां सारे ग्रुप्स की जी नंबर ऑफ आइटम्स आ अगर सेम है, अगर सेम है तां, अगर सेम नहीं है दैन जो तुहानूं प्रैक्टिस करवाई है फार्मूले की उही तुसीं प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट्स ये लैक्चर तुहाडे लई अगर वैल्यूएबल है तो सानू कमेंट सैक्शन दे विच जरूर कमेंट करियो। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो इस तरह दी होर वीडियोज़ दे अपडेट लैण लई। थैंक यू बी स्टूडेंट्स।